Assalamu alaikum everyone and welcome to another inspiring session of Amal Stories Alumni Connect series. Amal Stories Alumni Connect sessions is basically an initiative designed to bring Amal Academy alumni together to share their professional journeys, personal growth and valuable experiences. These sessions serve as a platform to inspire, connect and guide both current fellows and other alumni by showcasing the diverse paths our graduates have taken since completing the fellowship. The goal of Amal Stories is not just to celebrate success, but to foster a supportive community where alumni can learn from each other, exchange ideas, and find the motivation to pursue their goals with confidence. We are really thankful to all alumni who have shared their learnings and hands on experiences from the industry with the Amal community so far, and obviously with the current fellows as well. I would really encourage you to have a look at the previous Alumni Connects as it covers areas such as engineering, HR, freelancing, and some tips on CSS and many more. I'm Adnan Tariq, and today we have the honor of welcoming another Amal alumni whose journey is just the right example of perseverance, dedication, and life changing impact of seizing the right opportunities. Let's welcome Faizan. Faizan, thank you so much for joining us today. And to start off, can you quickly introduce yourself to our audience? Thank you so much, Adnan Bhai, for having me. It's a pleasure to be here. So I will start with already you said my name. I'm Faizan Fareed. So जो जर्नी मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहूँगा दैट स्टार्ट विद जो मेरी स्पेशली डाटा एनालिटिक्स की जर्नी थी एंड सो ऑन. फिर उसके बाद कैसे जॉब्स में आया और फिर लाइक ऑल द थिंग. सो आई स्टार्ट विद लाइक हाउ आई गेट इनटू दैट इंडस्ट्री स्पेशली. तो आई थिंक वो एक स्ट्रक्चर वे में चला जाएगा. दैट्स व्हाट वेयर आई वांट टू स्टार्ट. सो Sure. आई थिंक शुरू में क्योंकि आई जस्ट फैसिनेट विद वर्ड एनालिस्ट. आई डोंट नो व्हाट टू डू. लाइक इसमें होता क्या है, डेटा को कैसे काम करना है, लाइक एक्चुअली इसमें करते क्या है, आई आई हैव नो आइडिया. मुझे सिर्फ वो एनालिस्ट वर्ड वो फैसिनेट कर रहा था बिकॉज आई वाज रियली इंस्पायर्ड बाय लाइक अ फिक्शनल कैरेक्टर शेरलॉक होम जो कि एक डिटेक्टिव था. तो लाइक आई वांट टू आल्सो बी अ डिटेक्टिव बट यू नो इन दिस वर्ल्ड राइट नाउ वो आज के दिन में वो वैसे स्टोरीज वाले डिटेक्टिव जो 1960s में होते थे वो एग्जिस्ट नहीं करते थे. तो बट स्टिल आई वांट टू डू समथिंग लाइक दैट कि जिस जॉब में मिस्ट्रीज सॉल्व हो रही हो और वो कुछ ना कुछ ऐसे चैलेंजिंग काम हो रहा हो. तो वर्ड एनालिस्ट रियली इंस्पायर मी टू डू दैट. आई थॉट कि इसमें ऐसी मिस्ट्रीज होंगी जो सॉल्व करनी होंगी और वो मैं ऐसा बन जाऊंगा. सो एंड एक्चुअली एक ये भी चीज मैं पॉइंट आउट करना चाहूंगा कि हमारे यहाँ पे देयर इज अ ह्यूज करियर गैप एंड करियर काउंसलिंग गैप एज वेल, जहाँ पे बच्चों को ये नहीं पता होता कि व्हाट दे रियली वांट टू डू दैट. एंड इससे पहले मेरे पास कोई डाटा एनालिस्ट का एग्जांपल तो था नहीं, तो आई जस्ट जंप इनटू दैट इंडस्ट्री विदाउट नोइंग के व्हाट एग्जैक्टली इसमें होता क्या है. तो लाइक जब मैं आया तो वो जो मैं एक्सपेक्टेशन लेके आया था दैट वाज रियली कि वो थोड़ी सी शैटर तो हुई टाइम के साथ कि इसमें कंप्लीटली डिफरेंट चीजें हो रही है. इसमें तो हमने इंडस्ट्रीज के डाटा को ही एनालाइज करते जाना है. बट एट द एंड आई फिगर आउट इसमें भी मिस्ट्री है, इसमें भी मैं मिस्ट्रीज ही सॉल्व कर रहा हूँ बट other kind of mysteries. So that how I came into that industry. Like and after that when I came into that मेरा कोई intentional plan नहीं था कि मैं इसमें ऐसे आना चाहता हूँ. But when I figure out the so many things around that, so like I see ke I'm very thankful to in that industry because it's the pinpoint. It's the first step to coming into the AI. So it's all around the AI revolution. So that's why it's the first step when you start with the data. तो आपको वो सारी AI or like machine learning and all things you can understand very well. So this was the point I came into that. And now like if I talk about the career, if I talk about the jobs, so like I have very few jobs जो मैंने like corporate में की हैं. I mostly did freelance work because there is a one thing like I believe that कि जो corporate job जब हम करते हैं तो with me it start killing my like creativity और क्योंकि वो productivity थोड़ा सा kill कर देती है for me. So that's why I choose के time freedom हो, location freedom हो, तो वो like whatever you want to do, remote job या जैसे भी Right. जिस घंटों में आप करना चाहें आप कर Yeah, सकते हैं. So that makes that's sense. how I starting like doing that thing into job. So
Like I really want to talk about my first job experience के उसमें मैं कैसे आया तो like it was the first time कि मेरी अभी यूनिवर्सिटी खत्म नहीं हुई थी. I was in university and I got an like मुझे तब भी जॉब करना था because already मैं कुछ freelance projects कर रहा था, but I want to gain जो practical experience होता है जो on ground जाके वो कैसा होता है, वहाँ पे टीम वर्क Exactly. कैसे होता है, वहाँ पे काफी चीजें, there is so many learning thing एक्चुअली जो Exactly. हम रिमोट जॉब में नहीं सीख पाते. सो आई वांट टू डू दैट. Fizan, sorry to cut you here. I'm really, dying to know about your story. And, before you start off with your story of getting into your first job and everything, could you share with our audience about your academic background? Like, where did you graduate from? What were the majors that you studied? And what is your like alma mater? Yeah, I graduated from GC University Lahore in data analytics Okay, in 2023, and before that I studied ICS in intermediate. And after amazing. that 2023 like I started my as a professional career, but like वो उससे Mhm. पहले ही चल रहा था, लेकिन वो जिसे कहते हैं फुल टाइम, वो उसके बाद 2023 से स्टार्ट होना शुरू हुआ, जिसमें फुल टाइम फ्रीलांसिंग एंड ऑल दोस स्टफ इंक्लूडेड. Right. Amazing. So now let's like dive into the process, the whole journey, like how you started off and yeah, what were your learnings? या लाइक आई लाइक डाटा में जो सबसे जो बड़ी मुश्किलात थी कि आई एम नॉट अ टेक्निकल गाय. आई जस्ट लव डिजाइंस एंड थिंग्स लाइक दैट, बट व्हेन आई स्टडिंग द डेटा तो इट्स रियली कॉम्प्लेक्स. लाइक इट्स सो मेनी थिंग्स. इसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, इसमें डेटा स्ट्रक्चर्स को समझना होता है. देयर सो मेनी थिंग्स आई डोंट रियली नो अबाउट दैट, जो कि मेरे लिए सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल था इस इंडस्ट्री में सर्वाइव करने के लिए. And I also don't want to left that industry because wo I'm also inspired by the high tech jo like Iron Man and Jarvis, all kind of stuff जो अपना AI बनाना चाहता है. And also don't want to left that और इसे pursue भी करना है मुझे. तो इट वॉज अ बिग चैलेंज फॉर मी तो कि मैं इस चीज को कैसे कैरी करूं. सो आई थिंक द बिग थिंग फॉर मी जो अभी भी मैं अप्लाई कर रहा हूँ अपनी लर्निंग में, इट वॉज के मैं अपनी जो भी, फॉर एग्जाम्पल मैं यूनिवर्सिटी में कुछ भी पढ़ रहा हूँ, आई एम स्टडिंग आउटसाइड दैट के जो मैं इंटरनेट पे उससे रिलेटेड जो भी अच्छे रिसोर्सेज फाइंड कर रहा हूँ. फॉर एग्जाम्पल अब हमारी यूनिवर्सिटी में पाइथन की क्लास चल रही है, मैं पाइथन अच्छे से समझ नहीं पा रहा तो मैं आके उसकी रिसर्च करूंगा, आर्टिकल्स पढ़ूंगा, उस पर वीडियोस देखूंगा, उस पर कोर्सेज लूंगा. तो वो मेरी एक तो अंडरस्टैंडिंग और इनहेंस करेगा और मुझे एक वाइड काइंड ऑफ पर्सपेक्टिव्स देगा. दैट इज आई थिंक द प्लस पॉइंट जो मुझे बाकी चीजों में भी स्टैंड आउट करने में हेल्प किया. आई स्टडी एक मैंने काफी लंबा सर्टिफिकेशन की थी गूगल डेटा एनालिटिक्स की, जिसमें मेरी वो सारी आई थिंक जो भी डिग्री से रिलेटेड जितनी भी चीजें थी उन्होंने ऑलरेडी रियल लाइफ एक्सपीरियंस में कवर की थी. तो आई थिंक दैट वाज द प्लस पॉइंट आई वांट टू सजेस्ट कि जो भी आप पढ़ रहे हैं उसके साथ आप ये देखें कि इंटरनेशनल मार्केट में व्हाट्स गोइंग ऑन रिलेटेड टू दैट स्पेसिफिक थिंग, तो ताकि आप उसको कैरी कर सकें और लाइक आपको रियल वर्ल्ड का पता चल सके. बिकॉज इट्स लाइक अनफॉर्चुनेट टू से दैट कि आवर स्टडी सिस्टम इज रियली आउटडेटेड, जिसकी वजह से हमें काफ़ी चीज़ें जो रियल वर्ल्ड में नहीं हम अलाइन कर पाते उनके साथ, जब हम जाते Yeah, हैं रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस में जॉब में, तो तब हमें exactly. काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं. दैट वाज द थिंग Exactly. के जिसने मुझे हेल्प की. Amazing, Fazan. So you have a great experience as a data analyst and you have been working in the field of e-commerce as well. One thing that I would like to know that what is one thing that really excites you about the job? Like you mentioned that you wanted to be a detective and mystery solving was something that really excited you. So how have you been able to find that joy in your current in this job in this field? एक्चुअली दैट्स इंटरेस्टिंग थिंग कि जब मैंने डाटा एनालिटिक्स भी इट्स लाइक एन एमबीबीएस कि आपको आपके पास एक जर्नल, आपके पास चीज तो आ गई, बट नाउ यू नीड टू डू स्पेशलाइजेशन. आपको किस चीज में स्पेशलिस्ट होना है, आपको हेल्थ केयर में होना है, आपको मार्केटिंग में होना है, आपको किस चीज में होना है. तो वहां पे मैंने ई कॉमर्स चूज किया बिकॉज दैट वाज रियली फैसिनेटिंग मी. अब ई कॉमर्स में भी जो मिस्ट्री वाला पार्ट है जो मुझे ज्यादा लाइक अट्रैक्ट करता है वो यही है कि कस्टमर बिहेवियर को स्टडी करना और कस्टमर सेगमेंटेशन को स्टडी करना. वो आई थिंक वो जो मिस्ट्री जो मैं सॉल्व करना चाहता था वो यहाँ पे सॉल्व हो रही है कि अगर कोई कस्टमर उसका बिहेवियर क्या है, अगर वो बाय कर रहा है, नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा, हम वो सारे डाटा को एनालाइज करके फिगर आउट करते हैं. दैट्स हाउ द थिंग ड्राइविंग मी इन दिस इंडस्ट्री. Very interesting. And just a follow-up question that why do you think, Fazan, it is important to study customer behavior, consumer behavior when we are,
when we are working in e-commerce or as a data analyst? I think it's like we are missing huge part if we don't understand what our customer want. क्योंकि Mm-hmm. हमने अब एक पर्सन को बेचना है, if we don't understand कि उनकी नीड क्या है, वो क्या चाहते हैं, हम नो मैटर हमारी प्रोडक्ट कितनी अच्छी है, हम कितनी उसमें क्वालिटी डाल रहे हैं, हमारी प्राइस कितनी कंपेटिटिव है, बट उसके कोई पॉइंट नहीं अगर हम अपने कस्टमर की नीड को ना अंडरस्टैंड कर पाए, जो कि काफी Mm-hmm. ज्यादा कंपनियों ने अब अडॉप्ट करना पाकिस्तान में स्पेशली स्टार्ट कर दिया, बट इन द वर्ल्ड दे आर ऑलरेडी डूइंग दैट कि डाटा को काफी सीरियसली ले रहे थे और डाटा को स्टडी कर रहे थे, बिकॉज ये काफी चीजों में हेल्पफुल है। एक तो हमारी कॉस्ट बचाता है, दूसरा हमें डायरेक्ट टारगेट करने में हेल्प करता है कि व्हाट इज आवर टारगेट ऑडियंस इज, एंड ऑल्सो देयर सो मेनी थिंग हमें कंपेटिटिव एडवांटेज देता है कि जब हम अपने कस्टमर से अच्छे से कनेक्ट कर पाते हैं, सो इट मींस दैट कि वो हमारा नॉर्मल कस्टमर से लाइफ टाइम Right. कस्टमर में कन्वर्ट हो जाता है। दैट्स द मेन पॉइंट ऑफ डूइंग दैट। Yeah. Yeah, makes sense. So, Fizan, you've been associated with quite a lot of organizations and worked on open source project as well. You mentioned that you love to work on, through freelancing, you wanted to create those opportunities for yourself. So, could you please talk about your experiences? What were the major insights that you gained while you were associated with different projects and while you were working with different organizations? Yeah, I love to share the recent one right now. Mm-hmm. That was quite challenging, and it was the first time because data analyst में होता क्या है कि एक डेटा दे दिया जाता है और देयर इज अ सर्टेन क्वेश्चंस, हमें उस डेटा को एनालाइज करके उन क्वेश्चंस के आंसर फाइंड करने होते हैं। दैट्स व्हाट डेटा एनालिस्ट डू बेसिकली इन सिंपल, अगर वे मैं एक्सप्लेन करूँ तो। लेकिन जो अभी मुझे प्रोजेक्ट मिला था इंटरनेशनल क्लाइंट से, उसमें ये वो इतना इजी नहीं था, दैट वाज बिट कॉम्प्लेक्स, और वो मेरे लिए पहली बार था क्योंकि उसमें डेवलपर का भी काम था, उसमें हमने एपीआईज कनेक्ट करनी थी, हमने काफी ज्यादा ऐसी चीजों को एक्सप्लोर करना था जो उससे पहले मैंने नहीं की थी। आई डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस विद ऑल दैट बैक एंड एक्सपीरियंस जो बैक एंड पे होता है, डाटाबेस में कैसे एपीआई से डेटा फेच करते हैं, ऑल दोस काइंड ऑफ स्टफ। लाइक आई जस्ट डू कि हमें कैसे डाटाबेस से डाटा निकाल के वो करना है, बट दैट वाज द कॉम्प्लेक्स पार्ट जो मैंने पहले नहीं किया था। तो लाइक मैंने प्रोजेक्ट तो ले लिया बिकॉज आई वाज कॉन्फिडेंट कि मैं इसे कर सकता हूँ, बट आफ्टर दैट आई वाज लाइक दैट कि ये मैंने गलत तो नहीं कर लिया, बिकॉज इट वाज रियली कॉम्प्लेक्स एंड लाइक रियली डिफिकल्ट फॉर मी। बट आई वुड से कि वहां पे मैंने एक लाइक पाइपलाइन बनाई। पाइपलाइन इज लाइक दैट कि मेरा कोई भी प्रोजेक्ट चल रहा होता हो तो उसमें मैं एक सिस्टम बनाता हूँ कि हाउ हाउ आई वांट टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम, कि अगर मेरी ये प्रॉब्लम चल रही है तो मैं इसे कैसे सॉल्व कर पाऊंगा, एक लाइक स्ट्रक्चर बनाता हूँ मैं। तो स्ट्रक्चर में मैंने जब बनाया तो स्ट्रक्चर में मैंने देखा कि सिर्फ एक पार्ट है जो मुझसे सॉल्व नहीं हो पा रहा, दैट इज द डिफिकल्ट पार्ट, और उसकी वजह से सारा प्रोजेक्ट लाइक मुश्किल हो रहा है। तो व्हाई नॉट आई सॉल्व ऑल द अदर थिंग एंड इस पार्ट पे मैं बाद में आऊँ, लाइक आई डिड द सेम। और इसकी वजह से एक तो एफिशिएंसी बढ़ी, जो मुझे चीजें आती थी आई डिड वेरी फास्टली, एंड आफ्टर दैट पार्ट लाइक देयर इज सो मेनी complexity, but after all after learning new things and like gaining and talking to seniors and other kind of stuff, I like finally like understand that thing और मैंने उसे solve कर लिया। that was the thing कि उससे पहले मैं I was really scared कि मुझे इस चीज में नहीं जाना क्योंकि ये मुझे नहीं आता, बट जब वो मेरे पास आई मैंने उस प्रोजेक्ट को लिया तो एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नाउ इट्स द टाइम, इट्स अ डू और डाई, तो डू दैट। तो वो मैंने एक किया तो लाइक वो हो गया। दैट्स हाउ आई थिंक वी नीड टू थिंक अप्रोच थिंक के जैसे हमें वो लाइक हम वी डोंट नो दैट कि हम कब किस चीज में को फेस करें, तो इट्स अ बेटर वे तो कि वो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर आपके अंदर है तो यू कैन डू वेरी वेल। Very well said, Fazan, and totally agree with you. And I can also see you applying the skills that you learned during the Amal Fellowship, such as problem solving and the concept of just start, right? So, moving forward, taking a little step forward, I would like to know, okay, while you were able to, problem solve on the go, right? What other steps did you take for your professional development that helped you to get where you are right now? Actually, I would like to say कि I'm a very shy person and I don't know how to speak in public, किसी के सामने कैसे बोलना है। Still I'm learning, I'm not perfect yet. But वो एक like right now I can speak, चाहे अच्छा बोला जाए बुरा बोला जाए that's another story, but I can speak at least। तो it was like that कि इस fear ने मुझे काफी तंग किया, काफी जगह पे काफी मैंने opportunities lost कर दी कि I can be very good
इन दोज थिंग्स, कम्युनिकेशन में अगर मैं अच्छा होता और लाइक स्टेज फियर ना होता, तो आई वुड से कि अमल वाज द फर्स्ट थिंग के, क्योंकि मैंने सोच लिया था कि यूनिवर्सिटी में इतने साल में अगर मैं कुछ नहीं कर पाया, लाइक इस फियर को दूर नहीं कर पाया, तो नाउ आई नीड टू टेक द चांस, अब मुझे वो करना ही है। तो अमल वाज द एक्सपीरियंस कि जहाँ पे मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अपने आप को पुश किया, कि मैंने लाइक पार्टिसिपेट ज्यादा किया चीजों में, और लाइक जो जो मेरी सेल्फ नहीं भी थी, मैंने उस सेल्फ को अडॉप्ट किया कि मुझे अब वो शाय नहीं रहना, थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जाना। उसमें ऑलरेडी द थिंग इज दैट कि मैं टाइम टू टाइम आई सी अ लॉट ऑफ प्रोडक्ट, लाइक अपनी सेल्फ डेवलपमेंट वीडियोस एंड अ लॉट ऑफ स्टफ मैंने कंज्यूम तो किया हम्म, हुआ था, बट उसकी right. प्रैक्टिकल नहीं मुझे मिल पा रही थी। तो अमल वाज आई थिंक द फर्स्ट स्टेप जहाँ पे मैंने वो प्रैक्टिकल लेना स्टार्ट किया, एंड इट गोज रियली रियली वेल, कि जिसने मुझे वो कॉन्फिडेंस, आई थिंक वो जो मेरा इम्पोस्टर सिंड्रोम था, ऑलमोस्ट उसे गायब ही कर दिया। दैट वाज द फर्स्ट स्टेप जो अमल ने मुझे प्रोवाइड किया इन दिस ऑल जर्नी। आई वुड से कि लाइक अमल इज द प्लेस, वो ये एक तो अमल का सबसे अच्छी चीज है कि सेफ स्पेस है, यू कैन ट्राई एक्सपेरिमेंट, डू वट एवर यू वांट, नो वन जजिंग यू, एवरीवन इवन इनकरेज यू। सो आई थिंक दैट्स द बेस्ट अबाउट थिंग के जो अमल में है, वो प्लीज इस चीज को, क्योंकि अमल के बाद वो फिर मौका कहीं भी नहीं मिलने वाला कि आप वो दोबारा करते रहें, क्योंकि ऐसा ना तो ऐसा एनवायरनमेंट मिलता है। तो इट्स लास्ट चांस कि आप जो अपने आप में करना चाहते हैं वो इसमें करें, चाहे वो स्टेज फियर है, चाहे वो Mhm. कुछ भी है, डू वट एवर यू वांट इन अमल। Mm-hmm. Great, Fizan, and I can already see that how confident you are. So if I have to ask you, के fellowship say what are one to two things that that you have incorporated in the work that you are doing. So what are those things like? If you can mention top two. I would say number one is teamwork, and number two is I के प्रॉब्लम्स को अप्रोच कैसे करना है, लाइक उनके सॉल्यूशंस की तरफ Hmm. कैसे जाना है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, लाइक दीज टू। बिकॉज नंबर वन टीम वर्क, मैंने जितना भी रिमोट वर्क किया उसमें सबसे ज्यादा मैंने टीम वर्क लैक किया है, बिकॉज आई डू द प्रोजेक्ट मोस्टली Mm-hmm. अलोन, क्योंकि ऑनलाइन वर्ल्ड में ऐसा ही चल रहा है। बट जो अमल में वो ग्रुप एक्टिविटीज थी, जो हाउ टू इंटरेक्ट विद टीम, और जो हमारा मेगा प्रोजेक्ट चला उसमें हमें हमें कम्युनिकेशन कैसे करना है, हमारी मीटिंग्स हो रही होती थी, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो सबने कैसे डिस्कस करके उसे सॉल्व करना Right. है, और लाइक हमारा टाइम टाइम कम्युनिकेशन रहता था, और लाइक स्पेशली टीम वर्क में इज रियली के कॉन्फ्लिक्ट को कैसे सॉल्व करना है। दिस वाज द Mm-hmm. फर्स्ट थिंग आई लर्न इन दैट, बिकॉज उससे पहले मेरा टीम वर्क में भी एक्सपीरियंस नहीं था, तो कॉन्फ्लिक्ट में तो बिल्कुल ही नहीं था। तो ये आई थिंक सबसे जो बड़ा एडवांटेज था जो मैंने लर्न किया। एंड द नंबर टू थिंग इज के जब हमारे पास थोड़ा सा टाइम होता था कि 10 मिनट हमें दे दिए जाते थे, ग्रुप्स बन जाते थे, और उन ग्रुप में एक्टिविटीज चल रही होती थी कि यू नीड टू सॉल्व दैट, यू नीड टू डू दैट। तो आई वुड से कि वो एक प्लस पॉइंट था कि जिस जो हमारी जो कॉन्शियस, उस पर थोड़ा प्रेशर पड़ता था कि हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को यहाँ पे लेके आना, यहाँ पे हमें इन चीजों को पुट करना है। तो वो मल्टीपल एक्टिविटीज की वजह से वो जो Yeah. एक माइंड था प्रॉब्लम सॉल्विंग का, वो थोड़ा सा इनहेंस हुआ। So that was the two thing I really, really valuable learn from Amal. Super, super. And I'm sure that you are definitely applying them in your team as well while you are working in the technical role. And you also mentioned ke, technical skills you acquired like while you were studying, completing your studies, us doran bhi you started working, and that help you to work on your technical skills. Like, and when you were like, I just love the example that you gave that, ke, for example, in a Python class, if you are not able to understand anything, so you do your own research to get a better grasp of the project. So that actually shows that it's very much important to invest in the technical skills, and obviously the soft skills and communication skills are also equally important. तो थोड़ी सी टेक्निकल कॉन्वर्सेशन में मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि यू आर समवन हु हैज़ वर्कड इन ई कॉमर्स, राइट, एज अ डेटा एनालिस्ट. So, what do you think is the greatest challenge one person can face in this field? There's so many challenges. अगर मैं लिस्ट डाउन करना स्टार्ट करूं तो काफी ज्यादा हैं, बट लाइक इफ आई वांट टू हाईलाइट, इट्स द अडॉप्टेबिलिटी, कि लाइक सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि जो हम लर्न करके आते हैं, जो रियल वर्ड है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है, उसमें वो वैसा बिल्कुल भी नहीं चलता जो लाइक हमने लर्न किया कोर्सेज से या काफी चीजों से। सो इट्स लाइक दैट के फॉर एग्जांपल आपने
पाइथन लर्न करके आए, आपने सीक्वल लर्न की, बट आपने सिर्फ एक डेटाबेस से कनेक्ट करना सीखा, लाइक देयर इज द मल्टीपल डेटाबेस। अब वो कंपनी का डेटाबेस कुछ और है, तो आप उससे कैसे कनेक्ट करेंगे, आपका उसके साथ एक्सपीरियंस ही नहीं है। सो इट सीम्स लाइक दैट कि यू हैव टू बी वेरी वेरी अडॉप्टिव इन दैट। अगर आप अडॉप्टिव नहीं रहेंगे, अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर लेंगे 2-3 स्किल्स में या 2-3 टूल्स को चलाना सीख के रहेंगे, तो आई वुड से कि वो एक आपके लिए डिसएडवांटेज हो सकता है इस इंडस्ट्री में सरवाइव करने के लिए। बिकॉज बिकॉज ऑफ द एआई ये इंडस्ट्री इतनी ज्यादा इवॉल्व हो रही है दिन ब दिन, तो वी नीड टू बी वेरी अपडेटेड ऑन दैट दो स्टफ के हम कैसे उन्हें को रन करें, आपको अपडेटेड रखें। और आई थिंक फास्ट लर्निंग एंड अडॉप्टिंग न्यू थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। दीज आर द चैलेंजेस ना हो, काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, बिकॉज एवरीथिंग इज an obstacle in this industry. Right. And the right approach actually determines your way forward, and you have to be very much adaptable with a growth mindset. So I think I totally agree with you on this. So Faizan, Yeah. what would you recommend to those fresh graduates who are, planning to start their own e-commerce stores, since you have worked on a lot of Shopify stores as well? तो Yeah. या एक नई 2-3 टिप्स अगर आप उनके साथ शेयर करना चाहें तो व्हाट वुड दैट बी? Actually, that's a very good question because right now जो e-commerce की वेव चल रही है उसकी वजह से there's a lot of chaos in the market, और like पता नहीं चल रहा है क्या करना है क्या नहीं। Like सबसे पहले तो need to understand कि what's going on in the market, what's like है क्या e-commerce selling. For example, there's a many way of e-commerce selling, but just brief introduction मैं थोड़ा दे देता हूँ, then like वो एक understanding आ जाएगी कि at least करना क्या है और करना क्या नहीं है। तो e-commerce में basically there's a 2-3 kind of thing. The one is white label, the one is जो आप फॉर एग्जाम्पल यहाँ से चीज उठाते हैं, किसी ब्रांड की उठा ली और उठा के आप अपने ई-कॉमर्स स्टोर पे सेल करके बेच देते हैं, दैट इज द वाइट लेबल। एंड नंबर 2 इज प्राइवेट लेबल, जो आप प्रोडक्ट खुद ही मैन्युफैक्चर करते हैं या खुद अपने जो डिजाइन वो मैन्युफैक्चर करवाते हैं, लाइक वो प्रोडक्ट पे आपका पूरा कंट्रोल है, यू लाइक आप जैसा भी डिजाइन बनवाना चाह रहे हैं आप सेल करते हैं। दिस टू काइंड ऑफ मॉडल राइट नाउ वर्किंग इन पाकिस्तान। अब होता ये कि लोग जो कहते हैं कि फॉर एग्जाम्पल कि आप काफी कम इन्वेस्टमेंट से ई कॉमर्स स्टार्ट कर सकते हैं, इट्स ट्रू आप स्टार्ट कर सकते हैं, बट द प्रॉब्लम इज दैट कि ई कॉमर्स में सबसे जो डिफिकल्ट थिंग है वो सस्टेनेबिलिटी है कि आप सस्टेन कैसे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हाउ यू आर गोइंग टू सस्टेन, आपका अगर कस्टमर कैंसिलेशन रेट ही 20% है, 30% है, तो आप वो कैसे उसे लाइक आपकी कॉस्ट तो सारी यहाँ पे कट रही है। अगर आप लिमिटेड इन्वेस्टमेंट से आ रहे हैं तो इट्स नॉट द राइट थिंग टू डू दैट, उसमें फिर काफी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। आई वुड सजेस्ट कि सबसे पहले तो अंडरस्टैंडिंग ले कि क्या चल रहा है, डायनामिक्स क्या चल रहे हैं, देन केम इनटू दैट थिंग एंड एटलीस्ट हैव अ स्ट्रॉन्ग बिजनेस मॉडल। जब तक आपके पास स्ट्रॉन्ग बिजनेस मॉडल नहीं है कि आप कैसे डील करेंगे कस्टमर कैंसिलेशन से, अगर कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट ज्यादा आ रही है उसे कैसे रिड्यूस करेंगे, कस्टमर को एक्वायर करके लाइफ टाइम तक कैसे लेके जाना है, अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी को कैसे इनहेंस करना है, तो इट्स सीम्स लाइक कि आपने 8-10 डिपार्टमेंट में अकेले ही काम करना है। इवन तो आपकी टीम है, लेकिन वो 8-10 डिपार्टमेंट में आपको एटलीस्ट अवेयरनेस होना इंपॉर्टेंट है। इट्स नॉट लाइक दैट कि अगर आप फेसबुक एड्स में अच्छे हैं तो आप ई कॉमर्स स्टार्ट कर लें, लेकिन आप लॉजिस्टिक्स को कैसे हैंडल करेंगे, आप ऑपरेशंस को कैसे हैंडल करेंगे, आप फाइनेंसिस को कैसे हैंडल करेंगे, तो इट सीम्स लाइक a lot of skills you have to come into that industry. उसमें काफी ज्यादा चीजें, आई वुड से कि सबसे पहले तो आपकी बिजनेस मैथ स्किल काफी अच्छी होनी चाहिए इस इंडस्ट्री में आने के लिए। अलोन शॉपिफाई को लर्न कर लेना या उस पे प्रोडक्ट्स कैसे अपलोड करना है, उस पे स्टोर कैसे बनाना है, इट्स नॉट एन ई कॉमर्स। इट्स लाइक ई कॉमर्स से पहले आपको कॉमर्स का मॉडल समझना है, कॉमर्स कैसे वर्क करता है, कॉमर्स लाइक हाउ बिजनेसेस वर्क, देन यू कम इनटू ई कॉमर्स के, फिर उसी को ऑनलाइन सेल करना, दैट्स हाउ द बिजनेस वर्क। तो आई वुड से इट्स लाइक सबसे पहले तो आप समझ लें कि इसमें 8-9 चीजें हैं जो आपको अंडरस्टैंड करना है कि उन्हें कैसे काम करना है उनमें, फिर आप इस चीज में आए। और कोई भी वो एक्सपेक्टेशन लेके ना कि इट सीम्स लाइक दैट कि आज ही आपकी अगर एक दिन में 10 ऑर्डर आ गए तो यू आर डूइंग वेरी वेल, इट्स नॉट लाइक दैट। अगर आपके 10 आ गए तो वो बहुत मुश्किल से 6 आपके सक्सेसफुल डिलीवर होंगे। तो ये ऐसी इंडस्ट्री है। तो ऑल्सो लाइक पाकिस्तानी बायर्स लाइक जो खरीदने वाले वो भी ऐसे हैं कि उनके, तो it's really difficult to survive in this industry with very Yes, limited true skill that. set and budget. बिल्कुल बिल्कुल, like I think this ties, this point that you just shared ties
back to the first question that I asked with you, okay, why is it important to study, consumer behavior? So I think this is also very much important. Amazing, very insightful discussion, Faizan, and thank you for sharing all these recommendations. Because like अगर मैं इसको tie up करूँ तो doing your own market research and learning, developing a knowledge is very much important before we step into anything like this. So as I bring this conversation to close, what is one recommendation? A lot of our audience who is like watching this conversation live, they are from the Amal community, our current fellows and alumni. So what is one advice that you have to all the current fellows who are watching this conversation? या आई वुड से लाइक एक एडवाइस जो मैं मैं हर किसी को, अपने फ्रेंड्स को भी देता हूँ एंड ऑलरेडी हर किसी को, दैट इज लर्न एआई. That's Hmm. the first advice I give to everyone. The reason behind that, no matter आपका किस इंडस्ट्री से ताल्लुक है, आप मेडिकल पढ़ रहे हैं, आप एग्रीकल्चर पढ़ रहे हैं, आप कुछ भी पढ़ रहे हैं, नो मैटर व्हाट, जस्ट लर्न एआई. और एआई लर्न करने से मतलब ये नहीं है कि यू नीड टू लर्न कोडिंग एंड टेक्निकल स्टफ. यू नीड टू लर्न हाउ द एआई वर्क. फॉर एग्जाम्पल हाउ Yeah. द जनरेटिव एआई वर्क. या अगर फॉर आई एम श्योर हर कोई चैट जीपीटी यूज तो कर ही रहा होगा, बट उसके पीछे का सिस्टम क्या है, हाउ द चैट जीपीटी इज वर्किंग. यू नीड टू लर्न एआई बिकॉज एआई इज इवॉल्विंग इन एवरी इंडस्ट्री. और उससे एफिशिएंसी इतनी ज्यादा इनहेंस हो रही है इंडस्ट्रीज में. अगर कोई एआई को अडॉप्ट नहीं कर रहा तो वो अपना कंपेटिटिव एडवांटेज लूज कर रहा है, वो फर्स्ट मूवर एडवांटेज लूज कर रहा है, एंड Hmm. इवेंचुअली उसको इस चीज की प्राइस पे करनी पड़ेगी. सो दैट्स व्हाई आई से कि लर्न एआई नो मैटर व्हाट. आप साइड पे उसे चलते रहें, उसको लर्न करते रहें, बेसिक स्टेप से लर्न करते रहें कि कैसी चीजें काम कर रही हैं. एंड इवन दो नाउ एआई में इतना ज्यादा एपीआईज वो उन्होंने दे दिए हैं कि अगर आपको कोडिंग नहीं भी आती, स्टिल यू कैन मेक एन एआई मॉडल, एआई रैपर आप बना सकते हैं, कुछ भी एआई का ऐप बना सकते हैं विदाउट एनी कोडिंग. सो आई वुड सजेस्ट हाईली कि इस इंडस्ट्री को लर्न करें, इस ट्रेंड में रहें, ताकि आप अप टू डेट रह सकें. और वो जो एक बहुत बड़ी मिथ चल रही है कि एआई रिप्लेस कर देगी जॉब्स को, डेफिनेटली इट्स नॉट गोइंग टू रिप्लेस, बट जो ह्यूमंस यूज कर रहे हैं वो आपसे ज्यादा एफिशिएंट होंगे, तो वो डेफिनेटली आपको वो फिर पीछे छोड़ देंगे. तो आई वुड से कि एआई को जितना हो सके अवेयरनेस इसकी ले, इसको लर्न करें. Zabardast. Again, that's amazing piece of recommendation that you have shared, and thank you so much for bringing it, reiterating the importance of learning AI and integrating it in not only just into e-commerce or data, but into any field that we are working in. So amazing, Fizan. Loved the conversation that we had, and as I bring this conversation to close, as I'll, want to take a moment to reflect on the incredible insights that you have shared today, I would say that your journey overall has been, a true example of vision and, also how willing you are to adapt to work on certain problems. So, again, thank you so much for joining us today, and it was really nice talking to you. Okay, thank you so much, Adnan bhai, for having me. Yeah, really great conversation, and I love to contribute in Amal. मुझे वो अमल से हर किसी तरीके से कनेक्ट रहना है, तो इट्स अ रियली बिकॉज ऑफ द Hmm. एनवायरनमेंट, सो मच चार्मिंग एनवायरनमेंट. थैंक यू सो Great. मच. And to our audience, I would like to reiterate that Fizan is available, is the integral part of Amal community. And if anyone, wishes to reach out to Fizan, they can contact us and we will be happy to share Fizan's details with you if you need any sort of guidance in this particular relevant field. And I'm sure that Fizan this session basically has left you with valuable lessons and a renewed sense of motivation to everyone who was watching today. So basically, whether it's starting your own venture, guiding others, or pursuing your own goals, I would like, as I always mention, that remember that every challenge is an opportunity for us to grow. So Fizan, ऑब्वियस. for joining, for sharing your story, your wisdom with us, and for being a part of this meaningful discussion. So let's carry the energy of this session forward as we continue to learn and support from each other. So, as I mentioned in the beginning as well, that a lot of alumni have shared their insights in the previous chats as well regarding engineering, HR, freelancing, and CSS as well. So, just feel free to go back to our
previous Alumni Connects as well and explore it. And I'm sure that you will find them relevant in one way or another. So, see you in the next Alumni Connect session. And until then, everyone stay inspired and keep striving towards your goals. Thank you so much for joining.